Hare Krishna. So, let me just give a brief description of the last paragraph, last chapter. तो second episode थोड़ा relatable हो जाएगा हमारे लिए, correct? So, how the Mahabharata starts? Mahabharata starts with the description of Shantanu and Satyavati. Shantanu marries Satyavati, who is a daughter of a fisherman. Then Satyavati had two sons. What was the name of the Satyavati's sons? Last time we described Chitrangada, विचित्रवीर्या. वेरी नाइस. दोनों की मौत हो जाती है. कैसे हो जाती है? चित्रांगदा को एक गंधर्व मार देते हैं और विचित्रवीर्या को बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ही डाइज. यस, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ सेंस एंजॉयमेंट ही बिकम्स वीक एंड ही डाइज, राइट. उसके बाद द टू वाइव्स ऑफ विचित्रवीर्या आर विदाउट सन्स, who are Ambika and Ambalika. And by the process of Niyoga, they give birth to Dhritarashtra and Pandu. Now Pandu marries two wives. What are the name of Pandu's wives? The name were Kunti and Madri. Yes. And what was the name of wife of Dhritarashtra? Gandhari. Yes, very nice. So the Pandu gets a curse, as we all know. He was cursed by a deer who was dying, and he goes to Himalayas, does tapasya there for 12 years. Meanwhile, Kunti invites the three great demigods. What are the names of the demigods and the consecutive child? बच्चे, क्या नाम था उनका? फर्स्ट का धर्मराज. यमराज से कौन उत्पन्न होते हैं? युधिष्ठिर. Very nice. And Arjun is son of? Between Arjun and Yudhishthira is Bhima. Bhima is son of Vayu. So then Pandu cannot control himself, and as we all know, he goes to Madri and then he dies. Pandu dies, and all the sons with the Kunti goes back to Hastinapur. ठीक है? And meanwhile, when जब कुंती ने 3 sons को जन्म दिया, so Madri was feeling left out. Madri को लग रहा था कि I will remain childless. So Kunti Maharani gives the mantra, special mantra to Madri, and then Madri gives birth to two children. What are the names of the children? Nakula and Sahadev. So all these 5 are illustrious sons. They grew up very quickly. In terms of Bhima, it is said कि भीम जी एक बार छोटे बच्चे के फॉर्म में कुंती महारानी क्लिफ पे बैठी हुई थी, और उस क्लिफ से 3 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा गिर जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो पांडु की जो दिल है वो मुंह में आ जाता है कि भाई मर जाएगा, राइट. ही गोज डाउन एंड सीज पहाड़ के टुकड़े हो रखे हैं. दिस वाज द पावर ऑफ भीमसेना, बिकॉज दिस पावर इज कमिंग फ्रॉम वायु. नाउ व्हाट हैपेंस? ऑल द पांडवास who are excellent in power come to Hastinapur. Now in second episode we will see what happens in Hastinapur. Are you all ready? Yes. We'll chant the Hare Krishna mantra and we'll try to enter into this episode. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now Pandavas 13 दिन का मौन, वो क्या बोलते हैं, शोक रखते हैं because of Pandu's death, and then they enter into the kingdom of Hastinapur, and they start enjoying the princely life. They start getting trained in different aspects. They joke around, they play with the Duryodhan and other people. Duryodhan and party, how they were born, it's very interesting. So Gandhari served Vedavyas previous to her marriage with the Dhritarashtra, and the Vedavyas gave her a boon. What was the boon? क्या वरदान था? boon था कि you will get 100 sons. 100 लड़के आपके पैदा होंगे. और अब बेसिकली देखो, रेस चल रही है यहाँ पे. इमेजिन करो, आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, ठीक है. रेस चल रही है, 2 लोगों में रेस चल रही है. कौन ज़्यादा जल्दी संतान उत्पत्ति करेगा? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? जिसकी संतान पहले आएगी वो बड़ा माना जाएगा, और पहले के ज़माने में जो बड़ा होता था उसको पहले किंगडम मिलता था, करेक्ट. नाउ इफ़ यू सी क्रोनोलॉजिकली, द शांतनु महाराज के ये जो विचित्रवीर्य हैं, इनके 2 पुत्र थे. क्या नाम था उनका? धृतराष्ट्र और पांडु. धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, अदरवाइज ही वाज एल्डर. सो धृतराष्ट्र शुड हैव बीन द हायर टू द किंग. उनको मिलना चाहिए था किंगडम, लेकिन नहीं मिला. तो किसको मिला? पांडु को मिला.
ठीक है, अब पांडु के सन्स राइटफुल हायर हुए, यस और नो? बिकॉज पांडु जो है ही इज द करंट राजा, बस पांडु डाइज एंड ही गोज ऑफ टू द हिमालयास एंड दैट्स व्हाई धृतराष्ट्र इज अ इंटरिम किंग। जैसे भी बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम मतलब फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, दिस वाज द केस। लेकिन धृतराष्ट्र के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि साहब देखो, मैं था राइटफुल, आई वाज द वन हु वाज सपोज्ड टू बी द किंग, नाउ दिस पर्सन हैज टेकन अवे माय राइट्स, now I should get back the rights and my son should become the kings. Now simultaneously when Kunti is giving birth to Yudhishthir, जब पता लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैसेज तो आ ही जाएगा, क्योंकि गुप्तचर और जो क्या बोलते हैं स्पाइस, so spies are everywhere, so they get to know immediately that something is happening, and Kunti has given, Kunti and Gandhari both were pregnant at the same time and both were expecting children. Now what happens? Kunti gives birth first. Out of desperation and exasperation, Gandhari, what she does, you know, you cannot even imagine. She starts hitting her womb. बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, तेरे को राजा बनना है, मेरे को राजमाता बनना है, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। वो इतना जोर से अपने अब्डमन पे किक करती हैं या लात मारती हैं या इतना ज्यादा हिट करती हैं अपने हाथ से कि द फ्लैश comes out. The flesh is not yet completed. It's an embryo basically. The lump of flesh comes out. Now after this lump comes out, she becomes so dejected. You know what happens, right? हम किसी चीज के ऊपर आस लगा के बैठे होते हैं और जितना ज्यादा हमारी आस होती है, जितना ज्यादा हम उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपका कोई गोल है, कोई एम है, कुछ करना चाह रहे हो आप लाइफ में, राइट? सो वी बिकम टू मच एनग्रॉस्ड इनटू इट और हम ये सोचने लग जाते हैं कि एक बार मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, आई विल बिकम हैप्पी, आई विल बिकम दिस, वी गो टू नेक्स्ट लेवल, राइट? एक के बाद एक के बाद एक, वी बिकम्स टू मच अटैच्ड टू इट एंड टू द रिजल्ट्स, राइट? होता है हमारे साथ, के साथ होता है। अब क्या होता है, कुंती, इन्होंने, गांधारी ने बहुत सारे सपने देख लिए थे कि ऐसा होगा, मैं राजमाता बनूंगी, मेरे पुत्र राजा बनेंगे, ये होगा, वो होगा। वो सारे सपने क्या हो जाते हैं, चूर चूर नान हो जाता है। शी हिट्स and when this lump of flesh comes out, she immediately starts calling Vedavyas, क्योंकि वेदव्यास ने बोला था कि 100 पुत्र होंगे। अब आप देखिए the beauty of महाभारत, you will see the power of the sages, so much they are powerful. वेदव्यास आते हैं और बोलते हैं देखो भैया, हमने बोला गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं हो सकता। This was the first incident where test tube babies were born. This lump of flesh is divided into 100 parts, into 100 घी pots. एक pot होता है, उसके अंदर घी भरा जाता है, lump of flesh के 100 टुकड़े किए जाते हैं और उन pots में रख के उनको बांध दिया जाता है वेदा उच्चारण के थ्रू, मंत्रास के थ्रू। And one by one the pots get open after some months, and one by one the child starts coming out. The first child which was born was known as दुर्योधन। तो जब दुर्योधन का बर्थ हो रहा होता है, you know there are omens, संकेत जो आते हैं नेचर के थ्रू, that संकेत is owls will start making their things, and dogs will start barking, and there are vultures around, there is dark, pitch dark outside, so हर जगह ऐसे omens दिखने लग गए थे। and the बड़े बूढ़ों ने बोला कि भैया ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा, ये पूरे कुरु वंश का खत्म कर देगा। तो विदुर और भीष्म, ये दो ढंग की पार्टी है पूरे कौरव वंश के अंदर, बाकी सब, सो विदुर और भीष्म, ये दो जेंटलमैन लोग धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो इसको तुम बाहर करो, या तो इसको तुम देश निकाला कर दो, सेंड हिम टू द फॉरेस्ट, बिकॉज गिविंग अप वन लाइफ विल सेव मैनी लाइव्स, पूरी प्रजा के लिए अपने बच्चे का बलिदान दो। धृतराष्ट्र ने बोला नथिंग डूइंग, मेरे तो कुछ नहीं करने वाला भैया, मेरे को मेरे पुत्र मेरी जान से भी ज्यादा प्रिय हैं। और धृतराष्ट्र सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन पूरी महाभारत में सेम रोना रो के बैठा हुआ है। आफ्टर सम टाइम अगेन अक्रूर कम्स, वो आएगा अभी, अक्रूर जी आते हैं मथुरा से, उनको समझाते हैं कि भैया क्या चल रहा है, छोड़ो थोड़ा, अभी बुढ़ापा आ गया है। बोले नहीं, मेरे बच्चे रूल करेंगे, ठीक है। सो धृतराष्ट्र डज नॉट बज अवे फ्रॉम हिज थॉट। दुर्योधन पैदा होते हैं, उनके बाद में दुशासन इत्यादि 100 पुत्र पैदा होते हैं और एक कन्या पैदा होती है धृतराष्ट्र की, ठीक है। देयर इज वन मोर सन of Dhritarashtra with a maid servant, with a Vaishya woman,
and that person is known as Yuyutsu. Yuyutsu is a relatively friend of Pandavas. ठीक है, now cut back, come to the story again. Now Duryodhan and party were enjoying Rajpat आराम से. Meanwhile Pandavas were struggling in the forest, and now they have come back. Till now Duryodhan and others, Duryodhan was seen as the emerging prince. होता है ना, like that दुर्योधन को देखने लग गए थे कि now he is powerful, he'll take care, ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के घूमते थे. सारी सभाओं के अंदर उनका बात चलता था, वट होता था उनका. जैसे ही पांडवों ने एंट्री करी, हर कोई पांडवास के थ्रू अट्रैक्ट होने लग गया. Everyone became enamored by the beauty, the power, the strength, the persona, the charisma of Pandavas. So much so that Duryodhan and party became little less important. देखो ये importance ना बहुत खतरनाक चीज है यार. जब हमें इसकी आदत लग जाती है ना और फिर हमें ये नहीं मिलती किसी के थ्रू, we become frustrated. Duryodhan found Bhima's antics and power intolerable. Because जैसे आप होते हो उस बंदे के साथ आपका रहता है. तो दुर्योधन बहुत पावरफुल था, उसका बाहु में बहुत शक्ति थी और भीम के भी बाहु में बहुत शक्ति थी. तो अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ उसका कंपटीशन नहीं था, और नकुल सहदेव तो पार्टी उसमें तो वो तो कंपैरिजन में भी नहीं आ रहे. तो बात किससे हो रही है, 1-on-1 किससे हो रहा है, कंपटीशन किससे हो रहा है, भीम है पार्टी की भाई, जिससे अपन थोड़ा मतलब अपने लेवल का बंदा, राइट. As the eldest son of the blind king, Duryodhana had enjoyed the most prestige in Kuru house. The Kuru elders had carefully raised him and trained him in kingly arts, thinking of him as the potential future world emperor. When the Pandavas arrived, however, all that changed. Pandu's sons were gentle, modest, and devoted to their elders. They soon became dear to Bhishma, Vidura, and other senior Kurus. Their behavior was a welcome change from that of Duryodhan and his brothers, who tended to be self-centered and proud, and often quite arrogant. So देखिए ये सारी डिमोनियक क्वालिटीज हैं, एरोगेंट रहना, सेल्फ सेंटर्ड रहना, प्राउड रहना अपने पोसेशंस पे और चीज़ों पे, राइट. सो दुर्योधन एंड पार्टी के अंदर ये सारी चीजें थी, और दूसरी साइड पे पांडवास हैं जो कि जेंटल हैं, हम्बल हैं और मॉडेस्ट हैं. ऑल्दो दे आर पावरफुल, दे आर नॉट प्राउड अबाउट इट. दुर्योधन क्विकली बिकेम एनवियस ऑफ द 5 cousins. His envy grew up like an oil fed fire when he saw Bhima's pranks. अब भीम जी भी कम नहीं है, वो भी मजे लेते हैं पूरे. सो जब वो मजे लेते हैं तो दुर्योधन को गुस्सा, और अब खेल रहे हैं, जोक कर रहे हैं और बुरी तरीके से हरा दिया है और मजाक उड़ा रहे हैं. नाउ दे स्टार्ट प्लानिंग. दुर्योधन एंड दुशासन जो है टीम अप हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो 1 day ट्रिप. सो 1 day ट्रिप जाती है मैंशन, एक उनका एक फार्म हाउस टाइप होता है. मैंशन बहुत बड़ा सा मैंशन है. मैंशन वो क्या बोलते हैं, मतलब होता है ना किंग्स का छुट्टियां मनाने के लिए थोड़ा अलग से बढ़िया रॉयल पैलेस टाइप्स. सो द एलिगेंट पैलेस वाज बिल्ट अप ऑफ व्हाइट मार्बल एंड इट स्टूड 7 stories हाई. 7 माले का पैलेस है. Many colored pennants flew from the tall golden flagstaffs on its roof. There were a dozen of rooms offering every kind of luxury. हर प्रकार की लग्जरी उन रूम्स में थी. मतलब ऐसा नहीं है कि डिवोटीज हैं तो लग्जरी नहीं ले सकते. Even with devotees you can stay in a 5-star hotel also, still be Krishna conscious. So there are devotees of the Lord, but they are enjoying luxury also. Each room was tastefully decorated with tapestries, fine paintings, and ivory. Ivory is above gold, above platinum basically. Gold होता है, silver होता है, gold होता है, platinum होता है, ivory. Ivory and coral furnishing, studded with gems and covered with golden cushions. Royal musicians and dancers stood by, ready to entertain the princess, and 100 of the king's select forces of bodyguards stood ready to protect them. बाहर बंदे खड़े हैं, जैसे आजकल बंदे कोट और पैंट में और ब्लैक चश्मा लगा के, बड़ी सी पीछे पोनीटेल लगा के और दाढ़ी लगा के, जैसे देखते हो ना आप, खड़े होते हैं ऐसे करके कि भाई साहब है अंदर मजे कर रहे हैं. तो ऐसे ये लोग भी खड़े हैं डंडा लेके, साहब हमारे प्रिंसेस, दे आर एंजॉइंग इनसाइड, लेट अस गार्ड देम, दे आर द फ्यूचर, लेट अस गार्ड देम. बाहर खड़े होके गार्ड कर रहे हैं. वंस इनसाइड, दुर्योधना इनवाइटेड एवरीवन टू एंजॉय द ग्रेट फीस्ट ही हैड अरेंज्ड फॉर देम. प्लान क्या था? प्लान ये था कि इसको, ये एक तो आदमी दुर्योधन भी वो ये क्या नाम है अपना, भीम जी भी तगड़े हैं. कितना खाते हैं वो? जितना ये लोग मिलके खाते हैं उसका 20 गुना अकेला भीम खाता है. दिस इज द पोटेंसी ऑफ दिस थिंग. ठीक है. Once inside, Duryodhana invited everyone to enjoy the great feast he had arranged for them. He led them through the mansion and out into the central gardens.
Boys looked with pleasure upon the large ponds filled with the red and blue lotus and surrounded by soft grassy banks. Crystal waterfalls made tinkling sounds that blended with the singing of brightly colored exotic birds. Imagine करो, beautiful lake है, उस पे अलग अलग प्रकार के लोटसेस हैं, वाटरफॉल हो रहा है और चिड़ियों के चहकाने की आवाज़, क्रिस्टल क्लियर वाटर। ऐसा नहीं अपने जैसी हालत नहीं है कि केमिकल फ्लो हो रहा है, वहीं पे सीवरेज भी जा रहा है, वहीं पे सब जा रहा है, वहीं पे वो आंटी बैठ के कपड़े भी धो रही है बैंक के ऊपर। Completely clear water. The heady scent of the numerous blossoms filled the air. और जो हवा चल रही है वो भी एकदम मस्त करने वाली हवा है, मदमस्त हो जाए आदमी, भूल जाए अपने दुनिया को। Fine cushions had been arranged in the lines on the grass. और बढ़िया एकदम cushions जो हैं, जैसे अभी आप देखते हैं ना 5 स्टार होटल्स में अगर आप जाओगे तो पूल होगा, पूल के अराउंड वैसी वाली वो होती हैं, यहाँ चेयर्स होती हैं जिसमें वो आराम से अपना पैर करके आराम से आप बैठ के मजे ले, सन बात ले रहे हो आप, राइट। सो यहाँ पे ये लोगों के लिए सब कुछ अरेंज करके रखा गया था। एंड मेनी सर्वेंट्स स्टूड बाय वेटिंग टू सर्व द फीस्ट। ठीक है, द्रोणा वॉज द सन ऑफ, सो दुर्योधन ग्रैंड फीस्ट अरेंज करते हैं और सबको लाइन से बिठाते हैं और स्पेशली भीम को अपने साइड में बिठाते हैं, बिकॉज दुर्योधन ने स्पेशल एक पॉइजन मंगाया था और उस पॉइजन को मिक्स किया था किसके अंदर, वही वाला पूरा का पूरा कटोरा भीम को सर्व किया जाता है। As soon as that is served, what happens? इतना पॉइजन मिलाया गया था कि 10 लोग मर जाएं उससे, भीम को कुछ नहीं होता है, खा पी के मस्त 10 बंदों के जितना खाता है, फिर उठता है और थोड़ा बहुत घूमने के बाद सब लोग अपने कपड़े खोल के घुस जाते हैं नदी के अंदर नहाने के लिए। जब नदी में नहा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को एकदम, दुर्योधन पार्टी को एकदम डुबा देता है, एकदम अच्छे से मजे ले रहा है पूरा भीम। होता है ना ऐसे अपन प्लेफुली, बहुत मजे लेता है भीम दुर्योधन एंड पार्टी के, बहुत मजा आता है देखने में। धीरे धीरे करते करते पॉइजन का असर स्टार्ट होता है। जब सब लोग नहा चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं, अब सिल्क क्लॉथ पहनाया जाता है। जैसे देखा है ना आप, जैसे बाहर निकलते हैं वो व्हाइट कलर का वो लेके खड़े होते हैं दास दासियाँ, हाँ जी आइए पहनाइए अच्छे से, वो व्हाइट रोब, बाथ रोब, उसके बाद उसको ऐसे लगाया। वैसे पहले बाथ रोब नहीं होता, पहले सिल्क के कपड़े पहनाए थे। तो व्हाइट सिल्क के कपड़ों में और ज्वेलरी में पांडवास चमक रहे हैं, दुर्योधन पार्टी भी चमक रहे हैं, वो भी प्रिंसेस हैं और आके अब रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करते 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 रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। दुर्योधन दुशासन उठते हैं और देखते हैं भीम अनकॉन्शियस स्टेट में है। उसको सर से पैर से और पूरे उससे अच्छे से बांध के उसे उठा के नदी में फेंक दिया जाता है। और नदी में ऐसा फेंक दिया जाता है, गंगा है वो, तो गंगा के एकदम नीचे चला जाता है दुर्योधन। ठीक है, और थ्रू दैट गंगा you can actually reach नागलोका। there is a celestial path to the नागलोक। तो वो नाग रीजन में चले जाते हैं। नाग रीजन में किसका राज है? ऑब्वियसली नागों का। तो जैसे ही नाग देखते हैं कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी आई है उनके मजे, तो वो खतरनाक तरीके से अब बाइट करते हैं किसको? भीम को। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या होता है, जिस प्रकार का प्लांट बेस्ड पॉइजन भीम को दिया गया था, ये वाला पॉइजन उस पॉइजन के लिए एंटीडोट के जैसे काम करता है और भीम जो है ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वो देखते हैं 1000 सांप उनके सर पे ऐसे खड़े हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो होश में आते हैं, एक हाथ मारते हैं 500 इधर, दूसरा हाथ मारते हैं 500 उधर, सारे के सारे चित्त। तो बाकी के नाग तो उनके तो देख के हालत खराब हो जाती है, वो भागते हैं अपने चीफ के पास। उनके चीफ कौन है? वासुकी। वासुकी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब देखो ऐसा ऐसा आया, एक ह्यूमन आया, उसने हमको ओवर पावर कर दिया है। तो वो फिर वासुकी बोलते हैं कि हम जाते हैं। तो वासुकी जाते हैं एंड इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेस थ्रू हिज वन ऑफ हिज पर्सन्स, उनके जो चीफ हैं उनका नाम है अर्क। अर्क को पता था कि ये भीम है और जैसे उनको पता लगता है उनका स्वागत किया जाता है नागलोक के अंदर और उन्हें एक बेवरेज पिलाई जाती है। एक प्रकार का बेवरेज पिलाया जाता है जो कि खाली नागों के लिए होता है, बट भीमा हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट दैट। और वो रस पी के भीमा गेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। नाउ भीम जितना पहले स्ट्रांग था उससे 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग होके बाहर निकल। इधर बाहर क्या हो रहा होता है? दुर्योधन एंड पार्टी स्टार्टेड हाउलिंग एंड क्राइंग, ओ मेरे भ्राता, ओ मेरा भाई, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, गायब। तो पूरे हस्तिनापुर के अंदर मातम, सब पांडव लोग वापस चले जाते हैं एंड ही सर्चिंग, कहीं भी भीम का नामो निशान
नहीं है। 8 दिन पास हो जाते हैं। जैसे ही 9th डे आता है, कुंती महारानी की जान निकलने ही वाली होती है, बिकॉज शी इज सो मच ऑफ सेपरेशन शी इज फीलिंग फ्रॉम हर चाइल्ड। भीम आते हैं, भागते हुए आते हैं, दम 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 करते हुए, एंड आते हैं सीधा कुंती महारानी के पैरों में गिर जाते हैं और अपने भाइयों से फिर गले मिलते हैं और पूरा स्टोरी बताते हैं। उनको ये पता लग जाता है कि दुर्योधन पार्टी का काम है ये, लेकिन ओपनली युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं बोलते। व्हाई ही डजंट से एनीथिंग? बिकॉज ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट देम ओपनली। तो उन्हें, आप सोचिए, आपको ऐसा, आपका भाई है, पता है कि आपको ये मारना चाह रहा है, पता है कि इसी ने किया है, लेकिन आप खुल के बोल, सोचो मेंटली कितना ट्रॉमेटिक कंडीशन में हो आप। अब क्या होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है। युयुत्सु आता है और चुपचाप आके बोलता है युधिष्ठिर के कान में कि भैया, भीम को देख के अब बोल रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है, संभल के रहिएगा। तो पांडवास की भी हेल्प करने वाले लोग थे, तो इसलिए हमेशा अपने हेल्प करने वाले लोगों को हमें रखना चाहिए, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही सेकंड पॉइजन का अटेम्प्ट किया जाता है, भीम को बताया जाता है कि इसमें पॉइजन है, फिर भी भीम हंस हंस के पी जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब 10,000 हाथियों की उसके अंदर बल है और किसी भी प्रकार का पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। भीष्म और विदुर जो हैं कॉन्स्टेंटली पांडवास को गाइड करते हैं और उनका डिफेंस करते हैं। अब एंट्री होती है एक फेमस पर्सनालिटी। क्या आप रेडी हैं उस एंट्री के लिए? यस। तो धृतराष्ट्र देख रहे होते हैं कि भैया एक उनका मास्टर थे जिनका नाम था कृपाचार्य। अब कृपाचार्य जो हैं वो उनको मार्शल आर्ट तो सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन सेलेस्टियल वेपन्स की ट्रेनिंग नहीं है। व्हाट इज सेलेस्टियल वेपन? मंत्रास के थ्रू जो उच्चारण करके जो वेपन्स उत्पन्न किए जाते हैं और वो अटैक किया जाता है, वो नॉलेज नहीं है कृपा के पास उस लेवल का। तो ही इज सर्चिंग फॉर अ न्यू गुरु कि कौन कैसे कोई मिल जाए। भीष्म इज सर्चिंग। सो मीनवाइल एक इंसिडेंट होता है जिसमें द्रोणाचार्य अपना पावर दिखाते हैं पांडवास को, सेलेस्टियल पावर, मायाइक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, दिव्य पोटेंसी दिखाते हैं, जिससे कि पांडवास दे बिकम फुल्ली इम्प्रेस्ड एंड दे गो बैक टू भीष्मा एंड टेल हिम, एंड देन भीष्मा कॉल्स द्रोणा टू देयर हाउस, टू देयर होम, एंड द्रोणा tells his history. So let's try to understand who is Drona. Drona was the son of Bharadwaja, the all-powerful rishi who had dwelt for thousands of years in the deep forest and who not long ago had finally ascended to heaven. Although he too was a Brahmin, Drona was inclined towards martial art. While living in his father's hermitage, he had learned the science of arms from Agnivesha, another powerful rishi. He had also received knowledge of the celestial weapons from the great परशुरामा। एंड परशुराम के एक और शिष्य वहीं पे हैं, उसके अंदर क्या नाम है उनका? भीष्मा। वेरी नाइस, अमेजिंग। Despite having such great learnings, however, Drona remained a poverty-stricken Brahmana. He could hardly maintain his family. Thus, he had been on his way to Hastinapur, hoping to be engaged as princess teachers. So, इस प्रकार द्रोण जो है वो किसके पुत्र हैं? भारद्वाज मुनि के। That is, he's a मुनि, he's a Brahmana. But ब्राह्मण जो है, he is according to his birth he is Brahmana, but according to his characters he is Kshatriya. So, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. What is this? Is this birth? Is this a caste system? No. It was actually not intended to be a caste system. What is that shloka in the Bhagavad Gita? Can anyone say? So, Chatur Varnam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagashaha. So, जो 4 वर्ण हैं वो किस प्रकार डिवाइडेड हैं? गुण और कर्म के अनुसार। अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ है, बट ही लाइक्स टू ईट चिकन एंड मीट एंड ड्रिंक्स अल्कोहल एंड goes around and have sex with million women, then he cannot be called a Brahmana. Yes or no? On the other hand, a person born in a Shudra family also can be a Brahmana by his activities. ठीक है? Now what happens? Drona taught the princess everything he knew upon weaponry. The boys practiced every day from dawn till dusk. As the news of his martial school spread, princes from other kingdom also came to learn from the famous Drona. The Vrishnis, the Andhakas, and other famous and powerful dynasties sent their princes to Drona, and he accepted them all as his pupils. Pupils means disciples. Soon, Drona had thousands of students. सोचिए, 1000 प्रिंसेस सीख रहे हैं आर्चरी, सीख रहे हैं तलवारबाजी, सीख रहे हैं दिव्य वेपन्स को ऑपरेट करना। आज की भाषा में AK-47
M416, grenades, rocket launchers, drones, etc. AI warfare, robotics. Drona taught Princess, yeah. Among all, Arjuna excelled at his lessons. He remained always at Drona's side, eager to learn any little skill or extra tips. His ability, speed, perseverance, and determination were unequaled by the other princes. Arjun became foremost. Drona felt none could match his skills. So एक बार अर्जुन अपनी रात को खाना खा रहे होते हैं, इज डूइंग डिनर, एंड सडनली जो लाइट होती है, कैरोसिन पंप या जो भी आप बोलते हैं उसको, लाइट मशाल बुझ जाती है. एंड ही नोटिसेस, उन्होंने खाना तोड़ लिया है, जैसे राइस है वो ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली पिच डार्क के अंदर वो खाना उनके सीधा मुंह में ही जा रहा है. क्यों? बिकॉज ही हैज practiced. So hence light was not necessary. Similarly, if he practices at night, he will be able, for him the light won't be necessary. He can only do through his sound, and that is called as Shabd Bedi Baan. You would have heard Prithviraj Chauhan had this skill, Shabd Bedi. So he started practicing at night. Invisible targets को उसके हिसाब से, आवाज के हिसाब से शूट करने का प्रयास करते हैं अर्जुन. एंड द्रोण जब ये देखते हैं कि ये सिचुएशन है, द्रोण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अर्जुन से. एंड ही सेज, द्रोण सेज, आई विल मेक यू ब्लडी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ओलंपिक्स गोल्ड. तेरे टक्कर का कोई भी आर्चर पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगा. अर्जुन को प्रॉमिस करते हैं. सो प्रैक्टिस के टाइम पे अश्वत्थामा वाज आल्सो वेरी ग्रेट एट फाइटिंग एंड हैंडलिंग द वेपन्स. सो नाउ वन डे all these Pandavas and the princes are going to the forests, and the forest में वो एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा देखते हैं. सपोज करिए आप यहाँ से अभी बाहर जा रहे हो, और बाहर जाते हो, चौराहे तक पहुँचते हो, और वहाँ पे आपको एक कुत्ता दिखता है जिसके मुंह के अंदर 1000 सुइयाँ घुसी हुई हैं. कैसा लगेगा आपको? बहुत अजीब सा लगेगा. पांडवास को वैसा ही दिखा. कुत्ते का जो मुंह था पूरी तरीके से एरोस के थ्रू फील्ड था, पूरा भरा हुआ था एरोस से, और वो तड़प रहा था. जब पांडवास ने थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, कपास बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में, थोड़ा और कपास किया, मतलब थोड़ा और सर्च किया, तो क्या पाया कि एक पर्सन है जिसका नाम है एकलव्य, जिसका ये कांड है. अप्रोच्ड एकलव्य हैड प्रीवियसली कि मुझे आप ट्रेन करिए. ही वाज अ निषाद फ्रॉम निषाद बैकग्राउंड, ट्राइबल बैकग्राउंड. ट्राइबल्स आर वेरी गुड एट आर्चरी, वेरी गुड, दे आर अमेजिंग फाइटर्स. द्रोणाचार्य ने उनका बैकग्राउंड देख के और उनको वो देख के पावर, उनकी पावर देख के मना कर दिया था. सो नाउ एकलव्य को मना किया गया. सो आप लोग बताइए कि एकलव्य को मना करने के क्या कारण थे? द्रोणाचार्य ने क्यों मना किया? Why did द्रोणा neglected एकलव्य? Okay, डर क्यों था? Power in the hands of a person not a good character is a menace for the whole world. Character is more important than competence. So knowledge in the hands, in the wrong hands, can create havoc in the society, and it's a very big trouble for the world. And hence it was, Drona was very much skeptical about एकलव्य, एंड एकलव्य को मना करके भगा दिया था. लेकिन अब इस सीन के ऊपर द्रोणाचार्य की एंट्री होती है, और जैसे ही द्रोणाचार्य देखते हैं वो कुत्ता अब मौत के घाट उतर चुका है. और आगे थोड़ा जाते हैं, एकलव्य के ट्रेनिंग अरेना को देखते हैं, तो एक एफईजी बनाया हुआ है. किसका? द्रोणाचार्य का एफईजी बनाया हुआ है, और वो उनसे सीख रहा है. द्रोणाचार्य बोलते हैं कि भैया हमने तुम्हें मना किया, हमने तुम्हें क्या किया? मना किया कि हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे, तो तुम फिर भी मेरे को अपना गुरु मान के कैसे सीख रहे हो भैया? गुरु शिष्य का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सबसे बेसिक चीज गुरु शिष्य में के रिलेशनशिप में, obedience to the instructions of the guru is most basic thing in relationship between guru and disciple. Yes or no? But यहाँ पे आप देख लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं किए वो, and he is calling himself a शिष्य. शिष्य means, disciple means discipline. If there is no discipline, there is no meaning in being a disciple. So instead, so to save the world from this cruel person, from this agnostic person, what Drona did कि इनकी, एक्चुअली उसको वहाँ मार देना चाहिए था,
ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज दे विल किल मिलियंस। एक उसको छोड़ा है, क्या नाम था उसका जो फ्लाइट हाईजैक में छोड़ा था, मसूद। हाँ, एक बंदे को छोड़ा, पूरा जैश ए मोहम्मद खड़ा कर दिया यार उसने। मिलियंस को मतलब टारगेट है और थाउजेंड्स हैव डाइड ऑलरेडी। एक बंदे को छोड़ा। तो ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हाथों हाथ दे देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। शुड नॉट बी केप्ट इन द प्रिजन आल्सो। बट द्रोणा वाज आल्सो गुरु एंड ही थॉट दैट नो यार चलो क्या, जान से नहीं मारते, क्या करते हैं इसकी एबिलिटी छीन लेते हैं। एबिलिटी कैसे छीन लेते हैं? बिकॉज वहां पे उस समय उनके पास, अब ये एबिलिटी किससे है? इससे है, AK-47 इससे चलाता है आदमी उंगलियों से। पहले थंब वाज अ मेन थिंग, राइट? सो उसका थंब काट लिया गया। बोले कि ये गुरु दक्षिणा में आप मुझे अपना थंब दे दीजिए, आप मेरे को अपना गुरु मानते हो ना, गिव मी दिस दक्षिणा ऑफ अ थंब। दिस वे ही वाज टेकन आउट। ठीक है। नाउ मीनवाइल कुरूस अपना बढ़िया उनका चल रहा है। और कुरूस के अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है। क्या नई नई खबरें आ रही हैं आसपास के किंग से? एक खबर आ रही है कि 2 लड़के हैं, कुंती के 2 नेफ्यूज हैं। क्या नाम है उनका? कृष्णा एंड बलराम। कहाँ पैदा हुए हैं? मथुरा में पैदा हुए हैं। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से लौट के मथुरा आते हैं और कृष्णा ने अकेले बेयर हैंड्स कंस को निपटा दिया। तो वो वर्ल्ड फेमस न्यूज़ बन जाती है और कुरूस भी लोहा मानना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज क्षत्रिय किसको मानता है? शक्ति को। यहाँ शक्ति प्रदर्शन होगा, वहीं पे उसकी वैल्यू होगी। सो हर जगह वाहवाही मच रही है। और जो कृष्ण और बलराम हैं, उनके भांजे कौन हैं? पांडवास। एट द्रोणा's request, Balarama agreed to train Bhima and Duryodhana in the skills of handling a mace. गदा चलाना सिखाते हैं। कौन? बलराम। किसको? दुर्योधन एंड भीमा। Thus Balram spent time in Hastinapur, and while there he learned of the fierce rivalry and envy the Kauravas felt towards their cousin. When Krishna heard this, he became concerned for Kunti and her sons. Therefore, he asked one of his advisors, Akrura, to visit Hastinapur and assess the situation and to see if he could of any help. अक्रूर को क्यों भेजा गया? अक्रूर कौन है? पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अक्रूर ने, और इसलिए उनका नाम अक्रूर तो है बट एम्बिगुअस है। गोपीज बोलते हैं योर नेम इज एम्बिगुअस, यू शुड नॉट बी कॉल्ड अक्रूरा। क्यों? क्रूर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूर? Cruel. Akrur means who is not cruel. So gopis are telling you are the most cruel. Why? Those who have read Krishna book, they must be knowing. कृष्ण बलराम को वृंदावन से सेपरेट करके लाने वाली पर्सनालिटी अक्रूर है, जिन्होंने वृंदावन से कृष्ण और बलराम को अलग किया। That's why gopis and all the Vrindavan vasis are telling you should not be called Akrur, you should be called Krur. You are a cruel person, that you are taking away our life and soul, who is Krishna and Balram. They could not bear separation for Krishna and Balram for even 1 second, and they used to curse Brahma. Cannot bear separation even for a millisecond, and that personality was separated from this her and his beloved for a lifetime, for a personality known as Akrura. Now the same Akrura is sent by Krishna to Hastinapur. क्यों भेजा गया? माहौल चेक करने के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। द कुरूज रिसीव्ड अक्रूरा इन फ्रेंडशिप। कुंती वॉज ओवरजॉयड। कुंती के तो वही नहीं थे, क्योंकि कुंती वॉज द बहन एक्चुअली ऑफ वसुदेवा एंड ही वॉज रिलेटिव विद ईच अदर. शी इंक्वायर्ड अबाउट हर किन्समैन एंड फ्रेंड्स इन मथुरा. Kunti especially wanted to know everything about Krishna, whom she accepted as the Supreme Lord. Does my nephew Krishna think of me and my sons? She asked. Does he know how I am suffering in midst of my enemies like a doe in the midst of wolves? कुंती बोल रही हैं, क्या कृष्ण को इसका नॉलेज है कि हम यहाँ पे एक हिरण जिस प्रकार भेड़ियों के झुंड के बीच में फंस जाता है, वैसे हम हिरण हैं और ये कौरवास क्या हैं? भेड़िए हैं। सोचो अपने आप को। Nowadays people are in the West, people are identifying themselves as cat, dog, different personalities. You would have seen some reels. Identify yourself as hiran for some time,
and you are completely encircled by thousands of wolves. भेड़िए जो आपको कभी भी आपके पीछे पड़ सकते हैं आपको खत्म करने के लिए. Just imagine your position there. Who will save you? There is no one to save you. Akrura asked her to tell more about the situation in the city, and she began explaining everything. Kunti knew that Duryodhana and his brothers were always intriguing against her sons. The Kauravas could not tolerate Pandava's superior prowess. The humiliation they had recently received at Kampilya had made them even more keen to dispose of Pandu's sons. Kunti spoke to Akrura with tears in her eyes. Will Krishna come here to console me? I always pray to that all-powerful protector of the universe. Indeed, I see no other shelter for myself and my sons. This is devotee. उनके क्या बोला है यहाँ पे? There is no other shelter for me and my sons, because she knows that the only person who can help Kunti and her sons and devotees is Krishna. No one in this world can help me. Actually, for us also situation is same. We may have faith on our money, on our relatives, on our parents, on our friends, कि भाई है, भाईचारा ऑन टॉप है, सब हो जाएगा, भाई है मेरा, भाई बचा लेगा. वो खुद बेचारा उल्टा लटका हुआ है, वो क्या बचाएगा आपको? Only Krishna can save. That's why devotee always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna says in the Gita, Mat chittaha sarva durgani mat prasadat tarishyasi. By my potency. Mat chittaha. Just remember me. Let's try this out for next week. Try to remember Krishna in difficulty. Simply chant Hare Krishna mantra. Instead of going to Instagram and scroll endlessly and waste your time, it's better to surrender to Krishna. Kunti cried out to Krishna in front of Akrura. But Krishna is not there, no? Why she is crying out to Krishna? Because Kunti's eyes are anointed with a special kind of a kajal. आपने देखा होगा ना, माताएं काजल लगाती हैं आंखों में. क्या होता है काजल से? To give you a clear vision, to beautify your eyes. It's a kind of an ointment. Lord Brahma says devotees have a very special kind of an ointment in their eyes, जिससे कि उनकी आंखें सजी हुई हैं, और वो सजी हुई आंखों से वो भगवान का दर्शन हर जगह कर सकते हैं. What is that? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. Hridayeshu, always having darshan of the Lord, 24/7 having darshan of Lord, everywhere having darshan of Lord. This is the special quality of his devotee. So Kunti is able to see Krishna and she is praying to Krishna in front of Akrura. He gently reassured that Krishna was often speaking about her and had sent him to analyze the situation. Both Akrura and Vidura comforted Kunti. Akrura and Vidura. These are the two very important personalities in Mahabharata, and Bhishma also. Comforted Kunti and reminded her about her son's extraordinary birth. The Pandavas were the expansions of gods. There was no way that the evil Kaurava princes could overcome them. Okay? Now, in the next episode, very important, Guru Dakshina. गुरु दक्षिणा मांगते हैं द्रोण. कौरवास पांडवास की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ढंग से सुनिएगा. जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है, कौरवास और पांडवास से कुछ मांगा जाता है. जाते हैं वो लोग कि भैया बताइए महाराज जी क्या चाहिए आपको, जो आपको चाहिए हम लेके आते हैं. बोले मेरे को एक काम करो आप, एक काम्पिल्य नाम की एक जगह है. क्या है? वहाँ पे एक बंदा रहता है, उस बंदे का नाम है द्रुपद. कौन है द्रुपद जी? पांचाली के पिताजी. सो द्रुपद एंड द्रोणा वर फ्रेंड्स इन देयर चाइल्डहुड. ठीक है. फ्रेंडशिप में द्रुपद बोलते हैं जब मैं किंग बनूंगा, अभी वो प्रिंस हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं किंग बनूंगा मैं आधा राज्य तेरा
बोलते हैं ना, भाई मेरी बाइक तेरी बाइक, मेरा घर तेरा घर, तो क्या बोल दिया फिर, मेरा राज्य आधा तेरा, ऐश कर। बोले ठीक है, डन डन डन। देखो द्रोणा ने नहीं मांगा था सामने से, लेकिन इसने बोला, ठीक है। अब द्रोणा बड़े होके थोड़ा, ही इज अ मुनिपुत्र, मुनि के पास ऑलरेडी पॉवर्टी स्टिकन कंडीशन है, कुछ नहीं है, घर पे खाने को भी नहीं है। सो द्रोणा गोस एंड आस्क कि भाई हेलो क्या हाल है। बोले बस चंगा, आगे बताओ। तो द्रुपद बोलते हैं, द्रोणा बोलते हैं कि याद है आपका प्रॉमिस, आधा राज्य मेरा। तो द्रुपद ना क्या करते हैं ना यार, कुछ भी करने का था, द्रोणा का ईगो हर्ट नहीं करने का था। द्रुपद ने पूरी असेंबली के सामने खीखी कर दिया, बोले बेटा फ्रेंडशिप इक्वल वालों के साथ होती है। क्या नाम है इनका, द्रोणा का इतना मजाक उड़ाया, इतना ह्यूमिलिएट किया। अब द्रोण जो है वो जब वहां से जाते हैं, थोड़ा बहुत दे दिया, ऐसा होता है ना, कभी कभी डिवोटीज जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं, वी ऑल्सो गो फॉर डोनेशंस लाइक दिस, वी गो टू बिग पीपल इन देयर हाउस, इट्स अ टेस्ट एक्चुअली फॉर अ डिवोटी, समथिंग लाइक दिस हैपेंस। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर डिवोटीज हैव गॉन टू पीपल एंड लोगों ने क्या चाहिए, क्यों आ जाते हो बार बार, जैसे हमारे भक्त लोग आते हैं ना आप लोगों के पास, रिद्धि सिद्धि पीजी, उद्गम पीजी, ठक ठक ठक, हरे कृष्णा। सो डिवोटीज गो, क्या चाहिए, क्यों आ जाते हो बार बार, नहीं वो आपने बोला था अपॉइंटमेंट, क्या करेगा अपॉइंटमेंट लेके, 500 रुपए निकाला, फेंक दिया मुंह पे, जाओ दफा हो जाओ। और वो डिवोटी इतना हम्बल है, उसने वो 500 रुपए भी उठा लिए और आ गया कि समहाउ और अदर, नहीं इसको बेशर्मी नहीं बोलेंगे, इसको ह्यूमिलिटी बोलेंगे। Why he is doing it? Because this person has just offended. अब ये 500 रुपए एटलीस्ट मैं लेके जाऊंगा तो एटलीस्ट इसका कुछ तो बेनिफिट होगा जब ये भगवान की सेवा में लगेंगे तो। जस्ट इमेजिन। कमिंग बैक, द्रोणा को बहुत गुस्सा आता है, और द्रोणा, ये तो क्षत्रिय ना, क्षत्रिय ब्लड है, ब्लड तो क्षत्रिय नहीं है लेकिन गुण क्षत्रिय हैं, तो क्या होता है, आग में जल रहे होते हैं रिवेंज की, इसको आई विल शो हिम व्हाट वेयर ही बिलोंग्स। द्रोणा बोलते हैं देखो भाई मैंने तुमको ट्रेन किया, मैंने तुम्हारा सब किया, अब एक काम करो, द्रुपदा के पास जाओ और अटैक करो, उसके मतलब चीर चीर कर दो, एकदम खत्म कर दो, बर्बाद करके रख दो, पूरा आग वाग लगा दो, लूट लो, सब कुछ कर लो ऐसा। वो बोलते हैं चलो भाई। और दुर्योधन एंड पार्टी, देखो जिस बंदे को थोड़ा कम आता है ना, उसको दिखाने की ज्यादा वो होती है, ध्यान रखना आप कभी भी, जो बंदा ज्यादा उचकरा होता है या ज्यादा उसको वो होता है, ज्यादा चुल होती है कि मैं जाके करूं, मैं दिखाऊं, मैं अपना वो करूं, जो भी शो ऑफ कर रहा है इसका मतलब है वो अंदर से, और जिसके पास एक्चुअल पावर है वो शांत बैठता है, वो थोड़ा करने दे इसको, तो नाचने दे पहले, फिर अपन दिखाते हैं। सो दुर्योधन एंड पार्टी कहाँ चले जाते हैं, दोनों खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं बाहर ही, अंदर एंटर नहीं किया, अंदर एंटर तभी करेंगे जब राजा बन के जाएंगे भाई, और इनका ईगो अलग है, अंदर एंटर तभी करेंगे जब ये राजा, अपन राजा बन के जाएंगे तब, ठीक है। बाहर खड़े हैं, अर्जुन एंड पार्टी इधर खड़े हैं, अर्जुन बोलते हैं कि शांति से इसको जाने दो पहले, अर्जुन इंटेलिजेंट है, ही इज अ वेरी गुड आर्मी चीफ, सो व्हाट ही इज टेलिंग, इनको जाने दो पहले, अपन ही सामने वाली पार्टी की क्या देख लेंगे, सारी स्ट्रेंथ देख लेंगे, विदाउट असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर अपोजिट्स, अपोजिट पार्टी नेवर अटैक। दुर्योधन पार्टी मदमस्त, जैसे जिस स्पीड से गए दुर्योधन एंड पार्टी 100, उससे डबल स्पीड से लात घूसे दे दमादम मार मार के वापिस पिट पिटा के आ गए क्योंकि द्रुपद को पता लग गया था अटैक होने वाला है, उसने पहले ही सारी रेडी कर लिया था सिचुएशन। तो दुर्योधन एंड पार्टी क्या, पिट पिटा के वापस। अब अर्जुन, भीम और नकुल और सहदेव, भीम तो इतना ज्यादा चार्ज्ड अप था, भाई मेरे को छोड़ दो बस, जो बंदा मतलब जिसके पास पावर बहुत होती है ना, उसको कोई चाहिए कि भाई थोड़ा आजमाइश करें, थोड़ा पावर दिखाएं, थोड़ा लड़ाई करें, थोड़ा कुछ करें, मतलब क्या बैठे बैठे चूड़ियां पहना के बिठा दिया घर पे, कुछ करना है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, दुर्योधन तो भाग भाग के चला गया भाई, घोड़े पे भी नहीं बैठा वो, इतना एक तो हैवी धम 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 करते हुए हाथ में लिया और निकल लिया वो तो, और पीछे आ रहे हैं अर्जुन चैरियट के ऊपर, एक साइड नकुल एक साइड सहदेव। युधिष्ठिर को बोला आप यहीं रुको, आप टेंशन ना लो, हम 4 बहुत है, इनको हम ही निपटाएंगे। द्रोण के साथ कौन खड़े हैं, युधिष्ठिर।
दुर्योधन एंड पार्टी साइड में निराश होकर खड़ी है और ताने मार रही है, अरे कुछ नहीं होगा तुमसे भी, तुम भी मर के आओगे। अरे तो रुक, दिखाता है तेरे को। अर्जुन एंड पार्टी जाते हैं और फियर्स बैटल होता है, फियर्स बैटल। अर्जुन वॉज अ महारथी। महारथी मीन्स साइमल्टेनियसली ही कैन फाइट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बंदों को एक साथ निपटा सकता है वो। तो उसके एक तीर 10,000 बन के आते हैं। दिस इज धनुर्विद्या ऑब्वियसली। नाउ एक गोली 1000 गोली नहीं बन सकती। एक मशीन गन से एक बार में एक ही फायर होगा, कितना ही राउंड मार लोगे आप, है ना। भले ही उसके नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज कर लोगे, लेकिन एक गोली 1000 नहीं बन सकती ना। बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मिस्टिकल वॉरफेयर एंड नॉर्मल वॉरफेयर। तो अर्जुन को बताया जा रहा है इस प्रकार उनका तीर चल रहा है कि उनका हाथ नहीं दिख रहा है, बो नहीं दिख रहा है, बो दिख रहा है खाली, और दिख रहा है कि खटखट खटखट आता जा रहा है, जो मतलब पूरा आसमान भर दिया है तीरों से। और इतना भर दिया कि पूरी की पूरी अक्षौहिणी की अक्षौहिणी खत्म कर दी है भाई। तो भीमा जा रहा है, वो तो सीधा अपना लपेट रहा है, छक्का, MSD, हेलीकॉप्टर शॉट, अपर कट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, सब खत्म, राइट। उनका मेन बंदा आता है, आर्मी चीफ आता है, अर्जुन की लड़ाई होती है, उसको बचाने के लिए वो आते हैं, कौन? द्रुपदा, बिकॉज ही हिमसेल्फ द्रुपद इज ऑल वेरी गुड फाइटर। हाँ, वो भी तगड़ी चीज है, वो ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अर्जुन से फाइट होती है, अर्जुन पहले उनका तीर तोड़ते हैं, उसके बाद उनका कमान तोड़ते हैं, उसके बाद उनका बो तोड़ते हैं, उसके बाद उनके सारथी को मारते हैं, उनके घोड़े को मारते हैं, उनके ऊपर की ध्वजा तोड़ देते हैं, कवच को फाड़ देते हैं, आगे वाले सारथी को मार देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। एकदम एंड पे एकदम दयनीय कंडीशन में द्रुपद बचे हुए हैं। उसके बाद जाते हैं, पहले तो दे 2-3 अच्छे से खींच के, उसके बाद उनको मारा पीटा, अच्छे से बांध दिया, और घसीटते हुए रणभूमि पे घसीटते हुए लेके आते हैं किसके सामने? द्रोण को बोलते हैं, महाराज ये लो गुरु दक्षिणा, अब जो करना है आप कर लो। द्रुपद, देखो क्षत्रिय के लिए मौत ज्यादा बेटर है। अगर क्षत्रिय रणभूमि में मरेगा, हेवन जाएगा और वाहवाही होगी हर जगह कि भाई वीर गति को प्राप्त हुए। अगर पकड़ा गया तो पीछे भी होगा, और वहां पे जो वो करेगा वो तो करेगा। लेकिन द्रोणाचार्य वाज नॉट लाइक दैट। द्रोण ने बोला, हाँ भाई कर लें दोस्ती। उसने बोला था ना दोस्ती इक्वल वालों के साथ होती है, कर लें अब दोस्ती। बोलता है नहीं, मैं तो यही सोच रहा था। बोलता है लेकिन दोस्ती तो इक्वल वालों के साथ होती है ना, तुम तो बंधक हो, हम राजा हैं, अब कैसे करेंगे दोस्ती। लेकिन द्रोणा इज नॉट लाइक अदर्स, सो ही लीव्स हिम एंड स्टिल ही टेक्स हाफ ऑफ द किंगडम, कि चलो अब आधा मेरा आधा तुम्हारा। वहीं पे बुलाया ऋषि मुनियों को, कोरोनेशन करवा लिया खुद का, वापस भेज दिया, चलो जाओ हो गया आपका। अब द्रुपद महाराज इज ऑल्सो क्षत्रिय। देखो कर्म कभी भी रुकेगा नहीं, रिएक्शन का रिएक्शन बनता जाएगा। अब द्रोणा का गुस्सा शांत हो गया तो किसका आ गया? अब द्रुपद को लग रहा है कि भाई अब मैं इसको तो मृत्यु दंड, इसका तो गेम। द्रुपद एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से 2 संतानों की उत्पत्ति होती है। These are all different kind of unprecedented things। भाई समझ ही नहीं पाओगे आप। रामायण और महाभारत में ऐसी जगहों से संतान उत्पत्ति हो रही है, आपको समझ ही नहीं आएगा। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन ठीक है, यू एक्सेप्ट इट एज अ शास्त्र। सो वेयर वर वी? यस, यज्ञ से 2 पर्सनैलिटीज, इफल्जेंट पर्सनैलिटीज, most beautiful girl in the entire existence at that time came out. Who she was? Draupadi. And yeah, at that time Radha Rani's beauty is outworldly. वो इस वर्ल्ड की बात हो रही है, आउटवर्ल्ड की बात नहीं हो रही ना। Spiritual world is also there. So Draupadi and another person known as Drishtadyumna and Draupadi come out of that yajna. So Drishtadyumna and द्रौपदी के टाइम जब वो यज्ञ से बाहर आ रही हैं, एक भविष्यवाणी होती है कि this girl will be the cause of end of Kuru dynasty, and we all know that how it happened. And Drishtadyumna was made to kill द्रोणाचार्य। ऐसे संतान की उत्पत्ति हो जो द्रोणाचार्य का किलर बने, उसने बोला ही ऐसा, तो मंत्रोच्चारण ही उसी प्रकार हुआ और उस प्रकार का बंदा बाहर निकल के आया। अब पता है क्या होता है? अब समझ, खतरनाक वाली चीज ये है कि मतलब द्रोणाचार्य का कैरेक्टर देखिए आप। द्रुपद ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए किसके पास भेजा? धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा कि इससे सीख के आओ, और धृष्टद्युम्न जाके बोल रहा है, सीक्रेट नहीं है ये,
सबको पता है कि धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुई है। द्रोणाचार्य के पास गए, बोले क्या किसके पुत्र हो? द्रुपद के। ओ मेरा फ्रेंड, क्या करना चाहते हो? सीखना चाहता हूँ। क्यों सीखना चाहते हो? आपको मारना है। बोले देखी जाएगी, आने दो, लेट इट, ब्रिंग इट ऑन, बिकॉज दे सरेंडर टू द विल ऑफ द प्रोविडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको अपनी डेस्टिनी को सरेंडर करना ही पड़ेगा साहब, ठीक है। सिमिलरली अक्रूर जो हैं, अक्रूर आए थे, याद है अक्रूर आए थे साइमल्टेनियसली अनदर सिनेरियो के अंदर। अक्रूर ने कुंती महारानी से बात करी और फिर अक्रूर किसके पास जाते हैं? धृतराष्ट्र के पास। उन्होंने पूरा एक्सेस कर लिया, समझ में आ गया उनको कि 2 महीने के अंदर रहे वहां पे, पूरा समझ लिया कहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, सब समझ में आ गया। 2 पार्टीज बन चुकी थी, ऑब्वियस सी बात है, एक कुरुस पार्टी, एक पांडवास पार्टी बन चुकी थी प्रॉपर। मतलब अंदर राइवलरी खतरनाक वाली हो गई थी और हो गया था कि भाई ये तो लड़ाई एमिनेंट है ही है, कभी ना कोई ना कोई लुढ़केगा 100%। अब अक्रूर जाते हैं किसके पास? धृतराष्ट्र के पास, और उनसे कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? अक्रूर बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि भैया पहली बात तो आपने जो किंगडम लिया वो आप एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे थे। इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? जब तक कोई बढ़िया सक्सेसर नहीं है तब तक उसको संभाल के रखना है, उसके बाद आपको पास ऑन करना है। तो आ गया ना अब सक्सेसर, युधिष्ठिर आ गया, पास ऑन करो, खत्म करो बात। क्या चल रहा है ये? पढ़े हो मस्त आराम से। और धृतराष्ट्र बोलता है, फिर वो बोलते हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग रूल करो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत कुछ बताया। धृतराष्ट्र बोलते हैं हाँ 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 हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, लोगों को समझाते हैं भगवत गीता में ये लिखा है देहिनो अस्मिन् यथा देहे, हाँ 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 हाँ, वैराग्य चाहिए, हाँ 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 हाँ, अटैचमेंट छोड़ो, हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल सही बात है स्वामी जी, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बात है। सो धृतराष्ट्र वाज दैट कैटेगरी पर्सन। हाँ 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 साहब, बिल्कुल सही बात है साहब। नहीं, धर्म के अकॉर्डिंग तो जानना ही चाहिए साहब। भीम की शक्ति आप देखोगे, एक कीचक नाम का बंदा था, वो मैं अभी स्पॉइलर दे रहा हूँ। कीचक नाम का एक बंदा था, उसने, वो ये लोग जब इनकॉग्निटो थे ना, जब ये लोग अज्ञातवास में थे, कीचक ने की बुरी नज़र थी द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी वेरी ब्यूटीफुल, तो उस पर नज़र होती है कीचक की। कीचक बुलाता है, द्रौपदी परेशान हो जाती है, यार छोड़ दे यार, क्या है? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चाहिए ऐसा ऐसा। तो वो रात को बोले चलो ठीक है, आपको रात में मिलना, एक मेंशन में अलग से बुलाती। तो क्या होता है, भीम द्रौपदी की जगह ऐसे करके चद्दर ओढ़ के सो जाता है। तो जैसे ही रात को कीचक आता है, बोले तुम्हारा साइज बड़ा कैसे हो गया है, थोड़ा ज्यादा खा लिया है आज, आइए। जैसे ही वो हटाता है, ले तेरा बाप बैठा है इधर। भाई साहब ऐसा तुम्बा बनाता है मार मार के। मेंशन है शास्त्र के अंदर, उसका हाथ मतलब इतना मारता है, इतने घूसे मारता है कि उसका बॉडी जो है पूरा गोल बना देता है, मांस का गोला, पहचान में ना आए ऐसा। दिस इज द पावर ऑफ भीम। वो आगे डिस्क्रिप्शंस हैं, मैं भी स्पॉइलर थोड़ा सा दे दिया। आगे जब अगर हम वहां तक पहुंचे तो मैं जरूर सुनाऊंगा, पता नहीं हम कितना पहुंचेंगे, कहां तक जाएंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो हम कहां थे इससे पहले? हाँ, अक्रूर के ऊपर। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं हाँ हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्यों लेकिन छोड़ दो? नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते? टू मच अटैचमेंट टू हिज, एंड दिस मच अटैचमेंट दैट ही नोज इट इज रॉन्ग बट स्टिल ही डज इट। ठीक है, लास्ट 2 मिनट में एंड करेंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट? इस कांपिल्य वाले इंसिडेंट के बाद पांडवास की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इतना ज़्यादा कीर्ति फैल जाता है कि डिमांड करने लग जाते हैं, होता है ना आपस में। तो ऑब्वियस ही बात है, राजा के सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन पीछे से हेयर से सुनता है धृतराष्ट्र, उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं कि भाई साहब अब युधिष्ठिर आ गया है, अभी भी ये आदमी, अंधा आदमी छोड़ने को रेडी नहीं है, ये लग रहा है सिंहासन पे ही स्वर्ग जाएंगे, ऐसी बातें हो रही थी। तो अब धृतराष्ट्र को कुछ तो करना था, तो धृतराष्ट्र किसको बना देते हैं हायर? नेक्स्ट घोषित कर देते हैं दुर्योधन को नहीं, युधिष्ठिर को। जैसे ही युधिष्ठिर नेक्स्ट प्रिंस घोषित होते हैं, दुर्योधन का खाली आकार दिख रहा होता है, अंदर से वो पूरा जल चुका होता है। आपने कभी पेपर को जलते हुए देखा है? कभी न्यूज़पेपर को आग लगाना, उसका आकार ऐसा ही रहेगा, जल जाएगा पूरा, लेकिन उसको टच करोगे तो खत्म।
ऐसे दुर्योधन की हालत हो गई थी, अंदर से पूरा सड़ सड़ के जल चुका था वो एनवियसनेस जेलेसी के कारण। तो एनवी और जेलेसी ऐसी चीज है साहब, आपको कभी भी पीसफुल नहीं रहने देगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है नेक्स्ट? दुर्योधन बोलता है साहब देखो, 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, धृतराष्ट्र को, या तो इनको यहाँ से बाहर निकाल दो, किनको, पांडवों को, या फिर आप मुझे मेरा मरा मुंह देखोगे, बताओ क्या करना है। आपके हिसाब से धृतराष्ट्र क्या करेंगे? निकाल देंगे। और लेकिन कैसे निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, क्या बोल के निकालेंगे? पूरी जनता उनके साथ है ब्रो। सो किस प्रकार पांडवास को एक दूसरे देश भेजा जाता है, दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है, और किस प्रकार हाइप अप क्रिएट हो जाती है। एक लॉर्ड शिवा का बढ़िया महाशिवरात्रि फेस्टिवल होने वाला है, वहाँ पे अलग अलग ऐसा फेस्टिवल, ऐसी कीर्ति होगी कि पूरी दुनिया में वो फेस्टिवल फेमस है, आप लोगों को जो जाना ही चाहिए साहब। उन 5 को ही भेजा जाता है। दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि मुझे हम 5 को ही क्यों भेज रहे हैं भाई, इतना फेस्टिवल फेमस है तो अपने बच्चों को भी भेज। नहीं नहीं नहीं, तुम 5 जाओ, तुम 5 जाओ, वहां पे रहो, और जब मन करे तब आना। मतलब स्पेशली ऐसे बोल रहे, बिटवीन द लाइन्स आप समझ जाओ क्या बात हो रही है। और प्लान ये है कि दुर्योधन ने प्लान किया है कि वहां पे एक लक्षाग्रह बनाया जाएगा, ऑयल और घी से उसकी पेंटिंग की जाएगी, और उसके बाद पेंट लगा दिया जाएगा, और रातों रात इनको जिंदा जला दिया जाएगा। Will Pandavas survive this? How Pandavas survive this? How things turn about? How they are saved? Who helped them? And how they depended on Lord in every situation of life? Who is Hidimba? Who is Hidimbi? Who is Ghatotkacha? All this is coming in the next episode. So stay tuned. Hare Krishna. निताई गौर प्रेमानंदे। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की।